Dear students, so far we have done in this chapter by Leo Tolstoy and how much land does a man need. That there was a person named Pakham, and he had a very um, prosperous life. But if we compared his life with that of the city life, he felt peaked, means embarrassed. That's why he wanted to change his ways. He started boasting about his comfortable life, that if he had a comfortable life, he would recognize the devil. He wouldn't recognize the devil himself. So devil took it as a challenge, and the devil decided to give him enough land. Soon Pakham came to know that there was land being sold by the landlady in the neighborhood. He decided to buy 20 acre of land. He sold his gold, homestead, and everything, and the matter was clinched. He didn't buy 20 acre. He bought 40 acres. After that, he wanted to buy more land because it was becoming even more difficult for him to live his life. So he came across a peasant from the neighboring village. He was told that there was a person who was selling his land. So he bought 120 acres land. So after that, he was deciding to buy more land beyond Volga. So he was deciding to buy only 300 acres, but a man came across him and he changed his mind, and after much debate it was settled that he would buy 13,000 acre lands. Okay, he was so hardworking person that he, in search of land, didn't hesitate to walk for even 300 miles. And Pakham and his family now were having good building. They were having very good colt, very good homestead, cattle was there, so he was earning a lot. He was having a good crop beyond the Volga. Volga is a river we all know. So there beyond the Volga, his life was very prosperous. But he came to know somehow by some person that there were Bhashkirs. This is a tribal people's unit. These are tribal people, Bhashkirs. So he decided to buy land there. What he was given the clue that he was to just make them friends. He was to just offer them some wine, clothes, and they were to be made friends only. And he could buy the land at a very less price. So in the Canto 5 we will do कि Pakham ने अपनी वाइफ को पीछे छोड़ दिया घर पे, भास्किर से वो मिलने वाला था, अपनी जर्नी शुरू की, और अब वो जो ट्रेड्समैन था, व्यापारी था, उसको अपने साथ ले चला वो, और जैसे जैसे जाते गए और आगे बढ़ते गए 300 मील वो आगे बढ़े। 7वें दिन वो जाके पहुँचे वो भास्किर की जगह पे, जहाँ पे भास्किर ने टेंट्स लगाए हुए थे, तंबू लगा के वो बैठे हुए थे। इट वॉज ऑल जस्ट एज द ट्रीटमेंट हैज़ सेड। जगह वैसी ही थी जैसे उस व्यापारी ने उसे बताया था। जैसे ही उन्होंने पखम को देखा, वो अपने टेंटों से बाहर आए और अपना जो विज़िटर है पखम के आसपास आके वो खड़े हो गए। एक इंटरप्रेटर मतलब ट्रांसलेटर बुलाया गया, क्योंकि भास्किर की लैंग्वेज और थी। भास्किर पखम की लैंग्वेज को नहीं समझते थे और नीदर पखम भी उनकी लैंग्वेज को नहीं समझता था। तो वो अपने टेंटों से बाहर आए, उसके आसपास खड़े हो गए, इंटरप्रेटर बुलाया, ठीक है। तो भास्किर को काफ़ी खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि पखम हमारी लैंड ख़रीदना चाहता है। तो अपने बेस्ट टेंट में वो ले गए पखम को, और वहाँ पे उन्होंने उसको बिठाया, कुशन्ड
गद्देदार जगह पे कारपेट पे उन्होंने बिठाया, उसके आसपास बैठ के उन्होंने उसको चाय पीने के लिए दिए। कुछ क्यूमिस उनकी ट्रेडिशनल डिश है वो पिलाई, और उसके लिए एक शीप को उन्होंने किल किया, मारा उसको, उसका मीट बनाने के लिए, और मटन भी दिया उसका खाने के लिए। पक्खम जो था टुक पीजेंट्स आउट ऑफ हिज कार्ट, प्रेजेंट्स। पक्खम ने अपने गाड़ी से, अपनी घोड़ा गाड़ी से वो प्रेजेंट्स जो लेके गया था वो बाहर निकाले, भाशकीस में बांट दिए, चाय भी उनको दे दी। भाशकीस बहुत खुश हो गए। उन्होंने आपस में काफ़ी बातचीत की, फिर उन्होंने ट्रांसलेटर को बुलाया कि ट्रांसलेट करें। तो इंटरप्रेटर ने बताया कि पक्खम को कि ये बहुत खुश हैं आपसे, ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। तो ये इनका रिवाज है कि अगर इन्हें कोई गिफ्ट दे तो इन रिटर्न ये भी उसे गिफ्ट देते हैं, कि आपने हमें गिफ्ट दिए हैं तो आप हमें अब बताइए कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लेना चाहोगे जिससे आपको खुशी होगी। तो पक्खम ने कहा, मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है वो है आपकी ज़मीन। हमारी जो लैंड है जहाँ पे मैं रहता हूँ वो बहुत क्राउडेड है, सॉइल जो है वो एग्जॉस्टेड है, फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो चुकी है, पर आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, ये बहुत अच्छी ज़मीन है, ठीक है, मैंने ऐसी ज़मीन कभी नहीं देखी। तो पक्खम इमीडिएटली जो बेस्ट ड्रेसिंग गाउन था वो लेके आया हुआ, ठीक है, और 5 पाउंड का उसके पास टी बैग था वो लेके आया और चीफ़ को दिया। चीफ़ ने एक्सेप्ट किया, उनका जो कबीले का सरदार था उसने एक्सेप्ट किया और ऑनर वाली प्लेस पे वो बैठ गया, अपनी जगह पे वो जो उसका सिंहासन था वहाँ पे बैठ गया। भाशकीस लगा कि उसे कुछ कह रहे थे अपने चीफ़ को, चीफ़ ने उन्हें सुना, फिर उनको कहा कि आप चुप कर जाइए, इशारा किया। तो पक्खम को कहा रशियन लैंग्वेज में, वेल अगर ऐसा है तो ठीक है, आपको जो ज़मीन चाहिए आप ले लो, हमारे पास बहुत है, हमारा जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस की बात होगी। तो पक्खम ने पूछा कि आपका प्राइस क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्राइस है वो हमेशा सेम होता है, 1000 रूबल्स अ डे, एक दिन का 1000 रूबल। तो दिन का, तो यहाँ पे पक्खम थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो समझ नहीं पाया, एक दिन ये क्या मतलब है, ये कौन सा मेज़र है, ये कौन सा माप है, उसमें कितने एकड़ आते हैं जी एक दिन में। तो वी डू नॉट नो हाउ टू रेकन आउट इट, हमें नहीं पता ये क्या होता है। वी सेल इट बाय डे, हम ज़मीन को दिन के हिसाब से बेचते हैं। इसका मतलब क्या है कि एज मच एज यू कैन गो राउंड ऑन योर फीट, जितनी ज़मीन आप अपने पैरों पे चल के एक दिन में कवर कर सकते हो, एंड द प्राइस इज़ 1000 रूबल्स अ डे, आप उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी और प्राइस होगा 1000 रूबल। पक्खम सरप्राइज़ हो गया, पर एक दिन में तो आप पैरों पे चल के बहुत सारी ज़मीन तय कर सकते हो, बहुत सारी ज़मीन को कवर कर सकते हो। बंदा सुबह को चलना शुरू करे, शाम तक चल के मीलों चल सकता है वो। इट विल बी ऑल योर्स, ये सारी की सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी, बट देयर इज़ सम कंडीशन, एक कंडीशन है जी, आप जहाँ से चले थे सुबह को आपको शाम को वहीं पे वापस आना पड़ेगा, नहीं तो जो आपने हमें 1000 रूबल एडवांस में दिया है वो आपका ख़राब हो जाएगा, वो आपका नहीं रहेगा, वो आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे हम। पक्खम को बहुत खुशी हुई, उसने सोचा कि मैं कल सुबह जल्दी चल पड़ूँगा। तो उन्होंने पक्खम को एक फैदर बेड दिया, पंखों वाला बेड दिया, आरामदायक, इस पे सो जाना, और भाशकीस जो थे इधर उधर हो गए रात के लिए, अपने अपने टेंटों में चले गए।